Hello everyone. So after a long break, which was due to my health also and many other issues, थोड़ा सा हम लोग इस चैनल पे कुछ भी नया नहीं कर रहे थे, but today we are fortunate कि जब हम नया शुरू करने जा रहे हैं वापस से, so Mr. Chitrang Murdia is with us. Welcome Chitrang once again. Hello, sir. Thank you for having me. I hope you are feeling better now. Yeah. I have again started exercise, so I'm really feeling good now. And Chitrang is just going to complete his PhD now from Berkeley. And he is going to move to an Ivy League called UPenn, या University of Pennsylvania in Philadelphia. वहाँ पे postdoc के लिए join करने जा रहे हैं. So many congratulations again on one small achievement for your level. Thank you, sir. Next step up the academic ladder. Right. Next step up is postdoc. All right. So we were just discussing few days back, then Chitrang and I got the idea कि let's हम लोग बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे कभी चित्रांग से डायरेक्टली पूछते हैं, कभी मुझसे इनडायरेक्टली पूछते हैं. तो we gave an opportunity to students to ask questions on a Google form, and we received many questions, and there were 4 or 5 categories in which we divided the questions that were like JEE और competitive exam के बारे में, physics research के बारे में, और other things, and quantum mechanics वगैरह के बारे में यदि कुछ पूछना हो, और यूएस यूनिवर्सिटीज के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, सो और अदर भी था. तो ये सब चीजों को जोड़ के काफी सारे क्वेश्चंस आए, जिसमें एज यूजुअल बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स या लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जेई कंपटीशन वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जेई कंपटीशन से रिलेटेड भी थे. तो विल बी स्टार्टिंग विद दोस क्वेश्चंस. एंड वेलकम शुभांग. A few students whose questions we liked, and amongst those, Shubhang's question was really nice. So we have invited Shubhang to ask his queries directly from Chitrang Murdia. So Shubhang, what are you doing these days? Yes, preparing for G. Preparing for G. Which class, beta? Passing to 12th. Moving to 12th. Okay. So welcome, and you can pose your question live quickly. My question is how to handle the uncertainty of selection. It's quite hard, I think. Like we are spending 2 years of our life on preparing for an exam, and it's quite intimidating to imagine that selection would be guaranteed or not. So here is how I handled part of this problem for me personally. So I at least personally enjoyed the process of learning the material a lot. The actual act of learning the physics or the chemistry or the math was a lot of fun for me. So it never felt only like, oh, there is going to be this one exam that I will have to prepare for, and if I don't get a good rank, what is going to happen? The other thing that I have personally realized in life is that knowledge never goes waste. If you develop any amount of knowledge or skills right now, even if you don't get a good rank in the exam, life will find a way for you to use your knowledge. Maybe you'll like go to a different college, but maybe you'll get a very good admission for your master's position, or you'll get a good job or something different. But eventually, knowledge will find a way to sort of get used up in your life. So think of this process not just as a selection process, but as a knowledge acquisition process. That is my personal way of dealing with this uncertainty. I think it's like in my case, I have to go to school like 9 hours a day. So I think it makes me more nervous. That's the only difficult part. Like teachers will make you calm that it will happen. So don't be scared of it. Just learn.
don't think of the exams, but I think it's still quite difficult to accept that you are spending 2 years. Yeah, knowledge will help us, but 2 years of a life without doing anything, like going out, just studying whole day. Yeah, even for that, at least even in our conversation later today, we will talk about this, that you also need to like at least live a little even while you're preparing for this exam. Like it is important to sleep enough and eat well and take care of yourself. Like just preparing for any exam 24/7 is going to have a very detrimental effect on your health, both physical health and mental health. It's going to make you more nervous, more anxious about the exam. We don't want that to happen to anyone. We want you to also live a fulfilling and happy life. I know that it is very stressful and it is very easy to say from my position, but I want everyone to understand that this is very important. If you want to guarantee your like long-term happiness, you have to realize that this is a situation. There will be other stressful situations later on in life. So you'll have to learn to deal with stress. And even if there's a deadline approaching, which will happen when you're doing a job and when you're doing writing a research paper, a lot of those processes are also similar. You like work for 5 months and the paper appears, or you just go give a talk, or you're interviewing for a faculty position where in a few hours they'll be assessing the rest of your life. Oh. So part of it is also in preparing for those kinds of situations, because most selection processes, even for a job interview, would be like a few hours in which you will have to justify like years of your life in the same like Yeah. 3-hour interview. So Yeah. part of this is also preparation for like those kinds of situations in life, and it's more frequent than we would like it to be, but such is life. Athel, I would like to add something to this, Shubhang. Real life is also very highly variable, actually. So even if you think that you top the exam, it doesn't guarantee success. And even if you fail the exam, it doesn't guarantee failure. Yes, but this situation that Chitrang is saying that you will always be facing, where within few minutes or few hours, you have to show your preparation of last 2 years. This keeps on happening repeatedly in life. Even when I go and take a class, it is like whole of 25 years that I've learned, I have to show it in 1.5 hours. Nahi to student would say ki maja nahi aaya. So this happens with me actually every day. Okay. And still I give bad classes and few good classes. Very other way around, in my opinion. ठीक है? Okay, sir. Okay. Your So question. good luck for your preparation. Yeah. We hope you the best of luck for the future. Okay, sir. Thank you. All the best. Keep connected. You have the Okay. email and you can ask anything. Okay, sir. Thank All the you. best. Thank you for the opportunity. Yeah. Bye. Bye. तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बता ही सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने इस तरह की चीजें पूछी जो जनरली मतलब लाइफ में भी बड़ी यूजफुल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है, जैसा हम बात करते हैं। तो अभी भी उस फॉर्मेटिव ईयर्स में जो आपने पढ़ाई करना सीखा था चित्रांग, ऐसा नहीं है कि वो आइडिया, वो पढ़ाई करने का तरीका अब बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। वो इवॉल्व ही हुआ होगा, जैसा मैंने अपने जीवन में देखा है। सो थोड़ा सा तो आप इस बारे में बता सकते हो। हाँ, मतलब आई थिंक काफी चीजें, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं, आप कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, इवन मैथमेटिकली रिगरस प्रूफ क्या होता है, ये सब काफी चीजें मुझे लगता है कि लोग अपने यंग ईयर्स में ही सीखते हैं, अप्लाई भी कर पाते हैं। तो काफी वो चीजें आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो हाँ, जो सोचने का तरीका है, लॉजिकल रीजनिंग का तरीका है, एनालिटिक स्किल्स हैं, उसका काफी हद तक मुझे लगता है डेवलपमेंट इस एज में हो सकता है, स्कोप है उसके लिए। तो इट सॉर्ट ऑफ अफेक्ट्स योर फ्यूचर लाइफ। ऐसा नहीं कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, पर काफी हद तक इम्पैक्ट रहता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस का ऑन योर लॉन्ग टर्म एकेडमिक करियर एटलीस्ट। आजकल का जो इनफैक्ट नॉन एकेडमिक करियर भी है, आफ्टर ऑल दिस एआई एंड एवरीथिंग,
वो सीखने की कैपेसिटी पे ही आके जुड़ गए, बिकॉज टेक्नोलॉजी और हर चीज इतनी चेंज हो रही है कि यदि आपका नॉन टेक्निकल मतलब नॉन एकेडमिक करियर बट टेक्निकल करियर है तो भी सीखना अब तो सब लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया है। सो जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हो परेशान होते रहते हैं, उनको एक तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार इट्स ओके, यदि हमारा सक्सेस हो फेलियर हो वो एक अलग कहानी है, पर यदि इस प्रोसेस को अच्छी तरह से कर लिया तो लर्निंग कैपेसिटी आ जाएगी जो कि लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगी। इवन हाईएस्ट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, चित्रांग बर्कले में फिजिक्स में ब्लैक होल या ऐसी किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, उनके भी वही एनालिटिकल स्किल्स काम में आती हैं जो इन्होंने फॉर्मेटिव ईयर में कोचिंग जेई की तैयारी करते हुए उस समय पे सीखी थी। सो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपके हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हम ना ले पाए, लेकिन जो भी क्वेश्चंस लेंगे उसमें बेसिक थीम यही रहेगी कि जो आप सीख रहे हैं वो बेकार नहीं जाने वाला है, वो सीखने का तरीका भी बहुत काम है। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड चित्रांग, अदरवाइज we'll just We should get started with our Started? questions. all right. तो थोड़े से पहले पर्सनल क्वेश्चन ले लेता हूं क्योंकि उसका आंसर आप बड़ा क्लियरली दे देते। ऑलराइट, तो दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय माही। ओके, आई एम अज्यूमिंग शी। तो शी इज आस्किंग मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स एक्सेट्रा फ्रॉम 9th 10th, but you started JEE preparation from mid 11th, which is true because मैं शायद रिजिड बॉडी खत्म कर चुका था तब मैंने आपको पहली बार क्लास में बैठे हुए देखा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा रहा था शायद मैं, और उसके बीच में आप क्लास में आए थे। राइट, एंड स्टिल यू गॉट AIR1 फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडल। वो इसने नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। सो विच फैक्टर वाज डोमिनेंट योर प्रिपरेशन, हार्डवर्क और इंटेलिजेंस? आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शायद मुझ में थी जो बचपन से कोई ना कोई माध्यम से शायद मेरे पेरेंट्स को ये बेसिक थोड़ा सा जो शायद कुछ कुछ माध्यम से, मतलब मुझे अभी भी पता नहीं, कुछ कहानियां हैं कि मतलब बचपन में मतलब हनुमान मैसी चालीसा मैसी दिस इज मैसी। राइट, इसके पास भी बेसिक फुटबॉलिंग स्किल थी जब ये 13 का था। तो आई थिंक कुछ तो शायद जेनेटिक और इनहेरेंट भी था। फिर ये भी था कि थोड़ी पॉलिशिंग भी की उस स्किल की बचपन से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, मैथ्स मेरे को करने का बचपन से ही शौक था। तो बेसिक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी मैंने बचपन में की है मैथ की, नॉट फॉर जेई कोचिंग बट जैसे एट सम पॉइंट आई रियलाइज कि स्कूल का मैथ का सिलेबस वाज नॉट सफिशिएंट फॉर व्हाट आई वांटेड टू डू। सो काफी लोग बच्चे और भी करते होंगे कि 10th में 11th की टेक्स्ट बुक कर ली, 7th में 8th की कर ली। इस तरीके की चीजें मैंने भी की थी। एनटीएससी एक एग्जाम होता था हमारे टाइम, 8वीं में होता था, उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो थोड़ा बहुत दिमाग को यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह का एक्सपोजर तो मुझे था। मैंने जेई की प्रिपरेशन एजी सर को मैंने सर सही कह रहे हैं कि दिवाली के ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, और बीच में 2 महीना मैं बंसल क्लासेस जयपुर गया था, और थोड़ा टाइम रैंडमली उदयपुर में एक दो जो टीचर्स थे उनसे थोड़ा बहुत फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी। तो दैट वाज द बैकग्राउंड। हाउ मच वाज हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस? आई थिंक जेई जैसे एग्जाम में इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट बट हार्ड वर्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पेपर का एक फॉर्मेट है, एक टाइम की लिमिट है, कैलकुलेशन करने की स्पीड है। वो काफी सारे स्किल्स जो एक एग्जाम में आपको चाहिए होते हैं वो शायद आपको हार्ड वर्क से आते हैं, और चीजों को सीखने के लिए उनको यूज करना पड़ता है, उसके लिए सवाल करने पड़ते हैं। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हार्ड वर्क। सो आई थिंक दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, आई वुड से मोस्ट ऑफ इट इज स्टिल हार्ड वर्क इन द सेंस कि बहुत स्मार्ट लोग हैं दुनिया में। हर आदमी हर चीज एक जितने अच्छे से नहीं कर पाता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, परसिवरेंस और हार्ड वर्क की जरूरत भी पड़ती है टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। एक और पर्सनल क्वेश्चन है, हाउ टू बी डिसिप्लिन लाइक यू। डिसिप्लिन तो ये थे, अभी भी होंगे ही सही। ऑलराइट, तो डिसिप्लिन कैसे, हाउ आर यू सो डिसिप्लिन? ये भी अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो मैंने कोई ओवर द इयर्स बिल्ड किया है। मुझे लगता है मैं बचपन से ही एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चा था इन मोस्ट लेकिन मान लो कोई थिंग्स। अनडिसिप्लिन्ड हो, वो पूछ रहा है तो
मतलब कहीं कहीं तो ऐसी जगह पे रही होगी ना लाइफ में जहाँ पे तुमको लगा यार ये इनडिसिप्लिन है, लेट मी शिफ्ट लिटिल बिट और बिकम मोर डिसिप्लिन। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट आंसर तो ये कि कुछ लोगों को शायद इतना डिसिप्लिन उनको सूट भी नहीं करेगा, उनकी पर्सनालिटी के साथ भी नहीं जाएगा। कि भाई कुछ लोग डिसऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं अपने हर चीजों में। कई फिजिसिस्ट आपने देखे होंगे उनके बाल बिखरे रहते हैं और कपड़े पहनने का सलीका नहीं, और कुछ आपने देखे होंगे एक्सट्रीमली वेल ड्रेस्ड और एक्सट्रीमली करिज्मेटिक। सो दोनों टाइप के फिजिसिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, फाइनमैन भी है और आइंस्टाइन भी है, दोनों बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे, पर दोनों का लाइफ को लेके और तैयार होने वालों के अप्रोच में काफी फर्क भी था। तो एक तो उस चीज का स्कोप है, हर फील्ड में होता है कि ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन, हाँ काम को लेके थोड़ा डिसिप्लिन आई थिंक आपको कुछ भी अचीव करने के लिए चाहिए, बट कुछ लोग बहुत इरेटिकली काम करते हैं। कुछ हो सकता है बच्चे जो एक दिन में 10 घंटा पढ़ लें और अगले दिन पढ़े ही ना। कुछ हो सकते हैं जो रोज 5 घंटा पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट टाइप के बच्चों में से था, और ये शायद मेरे साथ मतलब जिंदगी भर ही रहा है कि आईआईटी में भी फर्स्ट ईयर में आई वाज द ओनली पर्सन जो कि रोज पढ़ लेता था। तो मैं एग्जाम के टाइम में पूरा 8 घंटा सोता था, बिकॉज मेरे ऐसे एग्जाम के लिए कभी पढ़ाई नहीं होती थी। कि लोग जाके वहां खेल रहे हैं तो उनको रात रात भर 3-3 रात 4-4 रात जगते थे। मेरी पढ़ाई ऑलरेडी कंप्लीट रहती थी क्योंकि मैं टाइम से पढ़ लेता था, मुझे शौक था। तो वो कुछ डिसिप्लिन तो आई थिंक मेरा इनहेरेंट है, ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है। बिल्ड कैसे करना है तो आई थिंक कुछ चीजों को आप मतलब स्टार्ट से रेगुलेट करके रखेंगे। जैसे मेरे घर पे ये है कि खाना खाने का एक फिक्स टाइम है, अ, उसी टाइम पे खाना खाया जाता है, उसी टाइम पे लोग सोते हैं। कुछ घरों में शायद नहीं होता है, कुछ घरों में होता है, तो आई थिंक कुछ हद तक तो वहां से भी आया है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की सिचुएशन में हुई है। बट टू पुट योर सेल्फ इन टू बेटर डिसिप्लिन लाइक मेकिंग अ शेड्यूल इज वेरी हेल्पफुल। स्पेशली आप मोटी मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लें कि मतलब इस टाइम से इस टाइम तक मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये एक चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है। दूसरा, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या, जब हम शेड्यूल बनाने लगते हैं, जब हम टास्क की टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटअप कर लेते हैं और फिर हम कुछ भी नहीं अचीव कर पाते हैं, फिर हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप स्पेशली यदि आप अपने आप को डिसिप्लिन में डालना चाह रहे हैं, तो एक साथ सब कुछ सेटअप करने की कोशिश मत कीजिए। एक महीना सिर्फ ये सेटअप कीजिए कि मैं ना सुबह का खाना इतनी बजे खा लूंगा और शाम का खाना इतनी बजे खा लूंगा। उसके अलावा आप बाकी डिसिप्लिन को छोड़ दीजिए। धीमे धीमे वर्क योर वे इनटू इट। डोंट ट्राई टू सेट अप अ हार्ड गोल कि मैं ये सब कल से सब ठीक हो जाएगा मेरी जिंदगी में। तो ऐसा नहीं होता। मोस्ट प्रोसेसेस आर वेरी ग्रेजुअल, और एनी हार्ड चेंज विल हैव बैकलैश। वो लेंजेस लॉ में जैसे होता है ना कि नेचर अबोर्स चेंज ऑफ फ्लक्स, तो वैसे मुझे लगता है कि हमारा नेचर आल्सो अबोर्स चेंज ऑफ पर्सनालिटी। तो धीमे धीमे करके करेंगे तो हो जाएगा। You still remember that nature about change of flux? मैं अभी तक वही पढ़ाता हूँ, मेरी लैंग्वेज वही है अभी तक, उस लेंस लॉ का स्टेटमेंट वही है। डेविड ग्रिफिथ्स ने ये लिखा था एक्चुअली ना, तो मुझे अच्छा लगा। और अबोर इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा अबोर कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब, थोड़ा सॉफ्ट बोल देते हैं। सो टू समराइज, स्मॉल चेंजेस करिए। अगले दिन मत सोचिए कि आज तो मैं इस तरफ था, रावण था, कल राम बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। स्लो 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 चेंजेस टुवर्ड्स द गोल करिए, तो प्रोबेबली आप धीरे धीरे रिक्वायर्ड डिसिप्लिन तक पहुंच जाएंगे अपने काम से रिलेटेड चीजों में। बाकी यदि आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है डिसिप्लिन, तो वहां पे आप इनडिसिप्लिन रह भी लेंगे तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अनडिसिप्लिन होके भी काम चल जाता हो, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तो बहुत ज्यादा टेंशन ना भी लें। ये भी साथ में चित्रांक कह रहे हैं। हालांकि I've seen very few students who were undisciplined and getting good marks because they were really, really very intelligent when they were undisciplined and getting good marks. So they are rarest of the rare. एक दो को हम पर कॉमन जानते हैं, चित्रांग और मैं, और उसके अलावा मैं कहीं को जानता हूँ, लेकिन दे आर वेरी, क्योंकि मैं 24-25 साल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी फ्यू। तो डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स डील करते हैं, एंड आई बिलीव ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं होता है, आपको भी आता होगा, मेरे को भी आता है, दैट इज हाउ टू डील विद नेगेटिव थॉट्स। दिस इज अविनाश प्रसाद आस्किंग। तो अगेन मतलब हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एटलीस्ट मैंने अपने आप को थोड़ा हद तक इस चीज के लिए प्रोग्राम कर लिया है कि
कोई भी थॉट आता है तो बहुत ज्यादा उसको खींचने की आदत तोड़ने की बहुत कोशिश की है कि आई ट्राई टू आस्क माई सेल्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कि क्या ये टाइप की लाइन ऑफ थिंकिंग या क्या ये प्रॉब्लम एक साल बाद मुझे मैटर करेगी। यदि उस क्वेश्चन का आंसर नो है तो आई एम लाइक कि इस पे भी एनर्जी वेस्ट करना यूजलेस है, कि कोई भी चीज जो 15 मिनट के लिए एक दिन के लिए मुझे तंग कर रही है उसका लार्ज स्केल पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको भूल सकते हैं अब हम। एक क्वेश्चन जो आप पूछ वेरी सकते नाइस हैं, अप्रोच, अमेजिंग। एक क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं कि कैन आई डू एनीथिंग अबाउट दिस सिचुएशन, यदि उस क्वेश्चन का आंसर नो है तो क्यों करना। So I think there are standard questions you can ask, and if True. all of those answers are no, लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट, एक साल बाद फर्क पड़ेगा। दूसरा, इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। व्हाट एल्स? दिस रियली नाइस थॉट प्रोसेस। एक ही और सवाल था, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा तीसरा क्वेश्चन क्या था, पर ऐसे 2 या 3 ही सवाल हैं जिनमें आप रीजन आउट कर सकते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम इनसे वीड आउट हो जाती हैं। बट जेई प्रिपरेशन वालों के बेचारों की कहाँ होगी? यदि मुझे आज समझ में नहीं आया तो एक साल बाद तो फर्क पड़ने वाला है बहुत जोर से। हाँ, तो यदि उस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर यू विल हैव टू वर्क। कुछ सवालों के पर नेगेटिविटी आपकी किल हो जाती है इससे कि हाँ, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, हाँ, इफ द आंसर टू ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस इज यस, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। बट एटलीस्ट नेगेटिव थॉट प्रोसेस मुझे लगता है काफी हद तक इससे नहीं होता है, मतलब शायद कुछ बच्चों को शायद होता हो, पर काफी हद तक इसी चीज से होता है कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या एग्जैक्टली। इस तरीके के सवालों से ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि मतलब हाँ, आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन ये कि इज इट इवन समथिंग आई शुड बी वरिंग अबाउट, कि हाँ, मतलब जैसे मेरे आज टेस्ट में खराब मार्क्स आ गए तो एक साल बाद तो शायद इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, किस वजह से आए वो टॉपिक पढ़ लो एंड जस्ट गेट इट डन। या फिर कुछ और हो सकता है कि भाई अनरीजनेबल से सवाल है कि हाँ, मतलब यदि मेरी जिंदगी में रैंक नहीं आती तो मेरा क्या होगा, अब उस सवाल का जवाब वहां 15 मिनट में तो नहीं दे पाओगे। या तुमने क्वेश्चन पूछा, साथ वाले बच्चे हंस दिए, वुड इट मैटर आफ्टर 1 year? समथिंग लाइक दिस। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। दिस इज somebody who follows you a lot, probably Hriday Sharma. Thank you, Hriday Sharma, for asking this question. Actually, probably Chitrang would also thank you after I tell him the question. Question is this, कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है ऐसा जहां आपने बोला कि 15-16 घंटे पढ़ना चाहिए, और ये बच्चा भी स्टार बैच में है, तो ये पूछ रहा है भाई 15-16 घंटे पढ़े कैसे? तो वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई ऑन दिस स्टेटमेंट कि ये कब किस परिस्थिति में आपने सच में बोला है, नहीं बोला है? यूट्यूब पे मैंने चेक किया था, बोला तो है। नहीं, मैं ये बिल्कुल अपनी गलती मानता हूँ कि ये स्टेटमेंट मेरा ही है। इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि है ना, मतलब सुबह मैंने इंटरव्यूज देने चालू किए जिस दिन रैंक आई थी, आप शायद वहीं पे थे, यस। सर थे वहां पे उस दिन। तो सुबह सुबह ना पहला इंटरव्यू जब आदमी देता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि कैसे जवाब देने होते हैं। तो मैंने सच सच जवाब दे दिए कि है ना, नहीं, ऑन एवरेज शायद 6 घंटा में क्लास जाता था और 4 1 घंटा में होमवर्क कर लेता था, करीब करीब ये एवरेज आता होगा मेरा। तो 10 घंटे था। तो है ना, वो फिर रिपोर्टर्स और जो बाकी लोग थे उनकी शक्लों पे था कि तो झूठ बोल रहा है। तो वी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 पे जब पहुंचा तो लोगों की आंखों में था कि अब ये सच बोल रहा है। तो प्रोसेस को नेगोशिएट किया कि जहां रिपोर्टर्स को मेरी बात ठीक लगी। ऐसा एक और सवाल के साथ भी हुआ था, मुझे लगता है कि मुझे ना पहले जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो ही वाज लाइक, अच्छा अब आपकी स्ट्रीम कौन सी होगी, क्योंकि उसके पहले तक तो हमने सोचा ही नहीं कि आईआईटी में रैंक आ गई, अब ब्रांच कौन सी लेनी है। हाँ, हाँ, तो उसके पहले सवालों में आई वाज लाइक कि हाँ, अभी मैं इलेक्ट्रिकल और सीएस में डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। फिर वो सवाल का जवाब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था कि वो रिपोर्टर्स के उसमें ये था कि अच्छा आपको तो पता ही नहीं है। तो वो शाम तक वो सीएस ही हो गया, और फिर मैंने सीएस ले भी लिया। फिर एक साल बाद रियलाइज हुआ कि उस दिन मैं जल्दी जल्दी में बहुत कुछ बोल दिया था, उसको भी ठीक करने में थोड़ा समेटने में टाइम लगा। So you see, Mr. चित्रांग ने जो 2 गलत जवाब दिए थे उसमें से एक से बाकी बच्चे परेशान हुए, दूसरे गलत जवाब से खुद परेशान हुए। सो प्लीज प्रेशर में आके ऐसे जवाब आप भी मत दीजिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपकी अच्छी रैंक आए, कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ हृदय। दिस इज द एडवाइस चित्रांग वुड आल्सो लाइक टू गिव। 15-16 घंटे पढ़ के तो आई थिंक आपकी हेल्थ और मेंटल
फिर हेल्थ दोनों में ही नुकसान होगा। जितनी जरूरत हो उतना पढ़ लीजिए एंड कीप, मतलब मैंने एक शेड्यूल भी डाल रखा है वैसे मेरे चैनल पे और टेलीग्राम पे, जहां पे मैंने गपोड़ेबाजी के लिए भी टाइम रखा कि आधा घंटा गपोड़े मारने हैं किसी के साथ में, क्योंकि उससे ब्रेन का क्लीनिंग होता है। फिजिक्स लोग भी गपोड़े मारते हैं क्या? हाँ सर, मेरे को तो लगता है फिजिक्स में तो काफी आदत है। आई थिंक मैथ वाले लोग थोड़े अनसोशल ज्यादा होते हैं, फिजिक्स अच्छा वाले तो मेरे हिसाब से शुरू से ही रहे हैं। अच्छा। पार्ट ऑफ द रीजन इज ऑल्सो कि मतलब they are very good, a lot of them are very good storytellers, they're very good at selling their ideas. ओके So I think phenomena has always existed. काफी physicists have been, Feynman was excellent storyteller, for example. उसके आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचित्र किस्से मिलेंगे। और भी आई थिंक काफी फिजिसिस्ट जो हैं अब यहाँ पे भी जो लोग हैं उनमें से काफी लोगों की बात करने के तरीके और नहीं, मतलब मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। गपोड़े मतलब ऐसे बैठ के मस्त गप मार रहे, मतलब अबाउट समथिंग नॉट रिलेटेड। हाँ, पॉलिटिक्स की गप्पे मारने का तो मेरे को लगता है सब फिजिसिस्ट को शौक होता है। सब इसमें सब फिजिसिस्ट को शौक होता है। तो ऐसे शाम को स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस में शाम के टाइम खाना वाना खा के आई थिंक इट इज वेरी कॉमन फॉर पीपल टू डिस्कस वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर अच्छा, स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस तरीके की चीजें। that's good. So I think Hriday, we have answered your question completely, and Chitrang has clarified कि वो question answer was forced by somebody and the other answer was also forced by somebody, जिसकी वजह से इन्होंने खुद ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि परेशान। हालांकि एक इसका, एक हाँ कहानी मेरे को और याद आ रही है इसी हाँ से हाँ, प्लीज प्लीज। कि अच्छा, अब ये मैं इसको है ना डेलिकेटली फ्रेज नहीं कर पाऊंगा, पर बेसिक दिक्कत ये थी कि मेरी कोचिंग कोटा में थी, मेरा स्कूल उदयपुर में था। ओके तो है ना, इस बात पे भी सवाल उठे थे उस टाइम में। तो आई वाज लाइक कि हाँ, मैं ऐसा करता था कि मैं 4 दिन स्कूल चला जाता था, फिर कोटा आता था, 3 दिन कोचिंग करता था और वापस जाता था। तो देवर लाइक कि अच्छा फिर आप गाड़ी में क्या करते थे आते वक्त जाते वक्त? तो अब वहां पे ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट तो कोई जवाब समझ में नहीं आता, तो मैंने बोल दिया कि मैं ना पढ़ लेता था। तो अगले दिन दैनिक भास्कर या जो भी न्यूज़पेपर में था उसकी हेडलाइन ये थी कि गाड़ी में चलते हुए भी पढ़ते हैं हमारे चित्रांग। तो ऐसी बहुत चीजें हो रखी हैं। अब वो जिसने पढ़ा होगा वो भी सोचता होगा कि अच्छा गाड़ी में बस में भी स्कूल जाते हुए पढ़ते होंगे वो बच्चे। तो मैंने कुछ नहीं किया था। ओके ओके। सो थर्ड थिंग आल्सो क्लैरिफाइड। ऑलराइट, पकड़े गए यार चित्रांग, कोई नहीं। सो हियर इज अनदर वन। वैसे तो ये इसका आंसर मेरे हिसाब से तो नन है, बट फिर भी आप पूछना बनता है। ऋषभ झा ने पूछा था, आपने प्रिपरेशन करते हुए किसी तरह की कोई मिस्टेक्स की थी क्या, और यदि करी थी तो हाउ डिड यू ओवरकम? अब ये सवाल, मतलब छोटी मिस्टेक्स तो शायद करी ही होंगी। बीच में एक टाइम आपको याद है शायद हम ताश बहुत खेलने लगे थे। मेरी उससे मार्क्स पे इफेक्ट नहीं आया, आसपास में हॉस्टल में जितने भी बच्चे थे उनके सबके नंबर 20-20 नंबर गिर गए। तो बाकी सबको खूब डांट पड़ी, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी। क्योंकि मैं होमवर्क करके ताश खेलता था, वो ताश करने के चक्कर में होमवर्क नहीं कर पाते थे। ये तो ठीक है, कंपटीशन को खत्म करने का तरीका। नहीं नहीं, मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो ऑर्गेनिक, तो जैसे बच्चों को मैं बहुत पढ़ाई भी है मेरे हॉस्टल में, ज्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक कुछ हद तक मैंने ही पढ़ाई है मुझे लगता है मेरे हॉस्टल में। तो मैं आई नेवर ट्राई टू किल कंपटीशन, आई वाज वेरी आई हेल्दी नो, दैट। आई नो, कभी नहीं, यू विल नेवर डू दैट। बट हाँ, तो ऐसी गलतियां मैंने भी की हैं, पर अब जब रिजल्ट अच्छा जाता है तो सब गलतियां माफ हो जाती है वाली बात है, तो अब याद भी नहीं है ऐसी। छोटी ठीक, मोटी की होंगी ज्यादातर गलतियां, एज वी सेड कि ऐसी कोई गलतियां भी आप नहीं करोगे जो आप कवर अप नहीं कर पाओ। इतनी कोई मतलब मेजर मिस्टेक्स होती नहीं है मेरे को लगता है। यस यस। बच्चे जितना घबराते हैं जे प्रिपरेशन में, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट देयर इज अ ऑल इंडिया रैंक 1 जिसका वीडियो है कि मुझे 11th में रिजिड बॉडी डायनामिक्स समझ में नहीं आई थी, और मैंने 12th में दोबारा पढ़ी तब जाके मुझे समझ में आई, एंड द गाय गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। नेम इज प्रोबेबली नितिन जैन, मुझे तो लगता है मुझे अभी 2000। तक भी नहीं आती है रिजिड बॉडी डायनामिक्स समझ में पूरी पूरी। आई थिंक दैट इज माय वर्स्ट चैप्टर। अभी तक मुझे लगता है कि मुझे फिजिक्स में सबसे कम वही पसंद आता है।
मेरे साल जेई में लकीली एक भी हार्ड में सवाल में दिक्कत नहीं थी, कोई भी ऐसा टेढ़ा सवाल नहीं था रिजिड बॉडी का। कैलकुलेशन तो कितनी भी करवा लेते मैं कर लेता। पर हाँ, रिजिड बॉडी मैंने नहीं पढ़ाई थी इसको, जो भी मेरी नहीं तरफ रिजिड बॉडी मैंने कहीं से पढ़ी ही नहीं है। हाँ मैंने वो तो टॉपिक ही पढ़ा ही नहीं है अभी तक। हाँ, ये कॉमन सेंस में सॉल्व कर लेता था रिजिड बॉडी के सवाल, तो कभी जरूरत पड़ी नहीं पढ़ने पढ़ाने की। अरे जितना इसको आता था उससे कर लेता आपसे सिर्फ शायद एक ही बारे में बात की रिजिड बॉडी में, वो कि था। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है हाँ उसमें इंटरनल टॉर्क हो सकता है, तो उससे क्या दिक्कत होती है, और सेंट्रल फोर्स का होना। मेरी शायद रिजिड बॉडी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहीं तक सीमित है मुझे। उतनी चाहिए होती, दैट इज एमी नॉइथर्स थ्योरम, वो आ गया। आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ स्पेस, उसके बाद तुम जैसे इंटेलिजेंट लोगों को, फिजिसिस्ट लोगों को थोड़ी कुछ चाहिए होता है इंटरनल वर्किंग, नहीं। हाँ, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे हाँ कोई मतलब हाँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा रिजिड हाँ, बॉडी की। और क्या। आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ स्पेस पे तो तुम पूरा पूरा पता नहीं क्या क्या कर जाओगे। सो देयर आर अदर क्वेश्चंस इज लाइक, डज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर्स इन जेई प्रिपरेशन? मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन को काफी हेल्प की इस चीज ने। अगेन बहुत लोग होंगे जो स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आते हैं, जिनको बिल्कुल चीजें पसंद नहीं है। एटलीस्ट मुझे चीजें पसंद थी। मैं मेरे स्पेयर टाइम में नॉन रिलेटेड फिजिक्स या साइंस, इवन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबें भी पढ़ लेता था, क्योंकि मुझे ना जेन्युइनली साइंस बहुत पसंद है। मुझे ना मतलब दिल से, किसी किसी को पसंद होती है ना चीजें, तो मुझे दिल से बहुत ज्यादा पसंद है चीजें पढ़ना, चीजों को समझना। तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट बहुत काम आया, क्योंकि मैंने बहुत रैंडम चीजें पढ़नी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। मुझे बहुत रैंडम यहाँ वहाँ के थ्योरम पता थे जो किसी के काम के नहीं थे। कुछ कुछ चीजें शायद जेई में आ भी गई, ज्यादातर चीजें उस टाइम पे यूज नहीं हुई, कुछ अभी यूज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको फायदा तो करेगा, यदि आपको इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में तो आपकी प्रिपरेशन में फायदा तो करेगा डेफिनेटली। पर कुछ सब्जेक्ट्स आप बिना इंटरेस्ट के भी पढ़ सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इंटरेस्ट को सिर्फ इंटरेस्ट ना रखें, जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई वो ये है, उसके ऊपर फिर पढ़ें। ये ना कि साहब मुझे इंटरेस्ट है फिजिक्स में, नहीं नहीं, वो तो मुझसे इंटरेस्ट वो नहीं चलेगा। वो वाली बात हो गई कि मतलब मैं भी बहुत मजाक उड़ाता हूँ कि मेरा बच्चा स्मार्ट तो बहुत है, बस पढ़ता नहीं है। I should not say this, but I'm not taking names. Yesterday night, I was counseling someone who was using exactly same words. अब मैं क्या बोलता मदर को कि यार मैम इट्स नॉट पॉसिबल, बट ठीक है। शी वॉज फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, सो वैसे ही डबल प्रेशर में था मैं, so I didn't say much. Exactly same words. So all right. एक और था जी, जेई देने से पहले अपना वाई या फिर रीजन होना कितना जरूरी है? इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन तो करें, ये तो दोबारा पूछो। यू वांट टू डिस्कस, यस यू वांट टू शिफ्ट? कर लेते हैं, लास्ट है क्या? लास्ट तो एक ऐसे ही है, जोकिंग है। चलो ये कर लेते हैं इसको भी। आई विल आस्क अगेन। पूछ लो। हाँ, या छोड़ें, चलो थक गए बोर हो गए जेई से। है ना, थक गए? ऑलराइट। जेई से हाँ, ये बात चलो ठीक है। इसके भी कुछ ना कुछ फॉर्म में इसके जवाबों की अपन ने बात कर ली, इंटरेस्ट की बात हाँ, इनडायरेक्टली। ऑलराइट। क्या एजी सर, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, क्या एजी सर आपके बैच के स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, लाइक ही इज टुडे व्हाइल टीचिंग अस? दिस इज हर्षित यादव। आप मिलिए क्लास में, आई विल आल्सो ट्राई टू आंसर, बट सिंस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू यू। मतलब मैंने कभी सर को ऐसे स्ट्रिक्ट तो नहीं देखा है, थोड़ा डिसिप्लिनेरियन थे। थोड़ा आई थिंक सिद्धांतवादी भी थे, कि जैसे एक बार क्या हुआ कि दो तीन लोग होमवर्क करके नहीं लाए थे, मैं भी था उनमें। तो अब दोनों चीजें हो जाती हैं कि एक तो पनिशमेंट भी देनी थी, तो एक बार तो सबको क्लास से बाहर निकाल दिया जिसने होमवर्क नहीं किया। फिर एक मिनट बाद जाके खुद ही बुला लाए कि कहा कि अभी पनिशमेंट के चक्कर में तुम्हारी क्लास भी छूट जाएगी, तो ये टोकन पनिशमेंट दिया कि अगली बार से ऐसा मत करना। तो आई थिंक वो स्ट्रिक्टनेस भी थी, पर प्रैक्टिकलिटी और
अंडरस्टैंडिंग भी थी कि मेरा पनिशमेंट है ना अननेसेसरली हार्श नहीं हो, या थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। या टीचर लोग चाहते तो यही है कि बच्चे सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत मजा आता है, सो दैट्स व्हाई, है ना। इट इज नॉट अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस, कोशिश तो यही रहती है, बट कभी कभी आपको रीजन नहीं दिख पाता कि क्यों कर रहे हैं, तो वेट, यू विल बी एबल टू सी रीजन। एक जैसे स्टोरी मुझे और याद है कि एक बच्चा शायद एक लेक्चर में नहीं आया था, तो फिर अगले दिन वो फोटोकॉपी करके ले आया नोट्स की, और सर ने उसको पूछा कि ना तुम आए भी नहीं, तुमने कुछ पूछा भी नहीं, क्या हुआ था, कुछ बताया भी नहीं। उसने बोला कि नहीं सर मैंने फोटोकॉपी करा, तो सर को बड़ा गुस्सा आ गया था। तो सर आपने लिटरली उसको है ना पर्स से 10 रुपए निकाल के दिए और कहा कि मेरे आज के लेक्चर की वैल्यू है तो फोटोकॉपी का। मतलब हर्ट तो फील होता उसके ही है, पीछे, बहुत हाँ उसके पीछे मुश्किल से कारण अब पढ़ा मैं रहे हैं, समझ सकता हूँ। बहुत फोकस चाहिए होता है पढ़ाते हुए। जब तुम पढ़ाते होंगे, यू मस्ट रियलाइज सामने लोग बैठे हुए लाइव, और उनका सारा फोकस आपको अपने ऊपर ड्रॉ करना है, रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। मतलब इट्स ड्रेनिंग सिनेरियो हियर, क्योंकि यू हैव टू कीप देयर फोकस। एक वर्ड इधर उधर हो जाए तो पूरी की पूरी आपने जो थीसिस पिछले आधे घंटे से प्रेजेंट कर रहे हो वो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब दैट जस्ट ब्रेक्स। सो पेन तो होता है कोई नहीं करे तो काम, बट दैट्स द वे वर्ल्ड इज। तो आई थिंक सर इज ट्रू, बट द रीजंस आर ऑल इन योर बेनिफिट, इन द बेनिफिट ऑफ Sometimes द maybe स्टूडेंट। I'm just, I did not had a good breakfast. ये भी रीजन हो सकता है। For those days, I apologize. So we move on to the next topic, that is फिजिक्स रिसर्च के बारे में भी लोगों ने काफी चीजें पूछी। आई वाज वेरी हैप्पी कि इस पे लोगों ने इतनी सारी बात करी। राइट, तो इसमें जो बातें करी गई है उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार उस टाइप के क्वेश्चंस एक साथ पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे पार्थ सिंघानी ने पूछा कि भाई सब कहते हैं रिसर्च में पैसा नहीं है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट। फिर इसी बात को घुमा फिरा के और भी लोगों ने पूछा, एक मिनट वो अगले वाले में शायद, मतलब इसके बारे में दो तीन लोगों ने और क्वेश्चंस थे, प्रोबेबली आई एम जस्ट मिसिंग इट हियर एंड देयर, बट कई लोग था जॉब सिक्योरिटी, स्टडी इनकम, रिसर्च फील्ड, ये पूछा था भाई ईशान यादव ने। एंड तो बार बार लोगों ने घुमा फिरा के इस तरह की बात करी कि मतलब मनी एंड रिसर्च का मतलब क्या किया जाए, मैनेजमेंट। सो कैन यू एनलाइटन अस लिटिल बिट ऑन दिस? तो कुछ हद तक बात लोगों की बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट, अच्छा मैं बता देता हूँ कहाँ पे कितना कितना पैसा रफली है। तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में दुनिया में ज्यादातर जगह आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके कमा सकते हैं, पर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में कहीं भी आपको पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। रिसर्च ग्रेजुएट इंटर्नशिप, का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता, ये बैचलर्स डिग्री जो हम लेते, बीटेक, बीएस, बी, वो जो पीएचडी की पढ़ाई होती है उसमें यूएस में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको स्टाइपेंड देती हैं। इट इज नॉट वेरी हाई गिवन योर एकेडमिक brilliance, matlab I feel like a lot of people, if they move to the industry, they can earn 3 4 5 even 6 times their incomes. काफी बच्चे जो हमारे यहाँ से भी जैसे ग्रेजुएट करके इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी मेरे एडवाइजर जो कि 20 साल से फिजिक्स कर रहा है उससे ज्यादा होती है अभी की सैलरी से। तो ये दिक्कत, ये पे गैप तो है। इंडिया में भी काफी जगह ग्रेजुएट स्कूल में आपको गवर्नमेंट का होने की वजह से ज्यादातर प्रोग्राम्स में आपको सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और फूड मिल जाता है, और थोड़ा बहुत एक बेसिक स्टाइपेंड मिल जाता है कि आपका है ना रहन सहन चल सके। आप उसमें बहुत कुछ कर नहीं पाओगे उस पैसे से, पर आपका एक बेसिक काम चल जाएगा। यदि आपके पास कोई फैमिली या फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से आपको घर पे पैसा भेजना या एक बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल इनकम होना बहुत जरूरी है, तो आई एग्री कि अभी करंट एकेडेमिया में दिक्कत है कि आपको शायद इतना पैसा ना मिले और आपको उसके लिए शायद फिजिक्स छोड़नी पड़े। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो करंट
दुनिया के साथ सच है। मतलब इसको लोग अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि ना बेसिक साइंसेज में फंडिंग बढ़े, बेटर अपॉर्चुनिटीज हो, पर दिस विल ओनली चेंज एट द पेस दैट इट इज चेंजिंग एट। तो ये दिक्कत है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। पर यदि आपके रिसोर्सेज और फाइनेंशियल चीजें अलाउ करती हो तो ऐसा नहीं है कि हालत बहुत खराब है। देयर इज इनफ, एज वी डिस्कस्ड, कि यदि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं है लाइफ से, तो देयर इज बेसिक अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी और बेसिक अमाउंट ऑफ इनकम है। जॉब सिक्योरिटी में मेन इशू इज फाइंडिंग फैकल्टी जॉब्स, बिकॉज वंस यू हैव अ फैकल्टी जॉब इट्स अ वेरी सिक्योर जॉब इन मोस्ट प्लेसेस। अब मुझे भी यदि हिस्टोरिकली देखें अपन, तो जो भी फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हुए हैं, जनरली दे वर फ्रॉम लाइक उस जमाने में फ्रॉम नोबल बैकग्राउंड्स, रॉयल्टी के पार्ट थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और लॉर्ड केल्विन थे, रॉय, लॉर्ड थे। कैल्विन, मतलब दे वर पार्ट ऑफ द दैट स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी जहां पे मतलब टॉकिंग अबाउट मनी वाज कंसिडर्ड रियली बैड। मतलब दे हैड मीन्स ऑफ इनकम, वो वाले बहुत सारे लोगों, उन्हीं लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फिजिक्स की है। मतलब फ्यू वर दोस्त की जो मतलब ठीक है अपने शौक से कर रहे थे। बाद में आफ्टर प्रोबेबली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूएस यूनिवर्सिटीज के पास अच्छा फंडिंग वगैरह आया, तब प्योर मतलब फिजिक्स के रिसर्च वाले लोग उस बैकग्राउंड के भी आए। नहीं तो पहले जमाने के तो मैं जितने भी फिजिसिस्ट देखता हूँ, देवर फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक टाइप ऑफ बैकग्राउंड और अपर मिडिल क्लास एटलीस्ट। मतलब यदि मैं गलत हूं तो प्लीज एनलाइटन मी। नहीं, मतलब दिस इज नॉट जस्ट ट्रू ऑफ फिजिक्स, आई थिंक बेसिक, मतलब कोई भी आदमी जो कुछ भी इंटेलेक्चुअल काम कर रहा था अप टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हाँ हाँ वो हर आदमी कुछ अमाउंट ऑफ वेल्थ से तो आ रहा था, क्योंकि बाकी गरीब लोग तो बेचारे खेती से ऊपर ही नहीं उठ पाए। हाँ। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अब प्रॉब्लम कितनी बड़ी, देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसी चीज में इन्वॉल्व होना है जो आपको लाइफ टाइम एक्साइटमेंट देती रहे और आपको परस्यू करती रहे, आपको रोज सुबह उठ के वो काम करने की इच्छा हो, एंड आपको बाकी कोई बहुत बड़ी टेंशन यदि नहीं है तो गो फॉर इट, क्योंकि आपका बेसिक रहन सहन चल जाए। सो दैट इज वेरी क्लियर कट आंसर जो चित्रांग ने इस पे हमको दे दिया। तो जिन्होंने भी मनी वाली चीज पूछी है, दिस इज द आंसर। देन there is a personal direct question to you also. What encouraged you to pursue research in physics, and how do you got to know that you want to do that for your remaining life? So I really like this question, Mr. Ayush Kumar. Thank you for asking this. तो पहले क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा आसान है कि मतलब ओवर टाइम आप एक कुछ चीजों में एक्सपर्टीज बिल्ड कर लेते हो, वो चीज आपको फिर पसंद भी आने लग जाती है, आपके बेसिक स्किल सेट होने के कारण आप उसको कर भी पाते हो। तो कुछ हद तक तो मुझे फिजिक्स इसलिए पसंद है बिकॉज आई हैव सॉर्ट ऑफ अ नेचुरल टैलेंट, अब मुझे लगता है, फॉर इट, which has over the years become even more pointed and practiced. फिर ओवर टाइम बिकॉज आई गेट टू ऑल्सो चूज व्हाट आई नीड टू डू, सो मैंने अंडर ग्रेजुएट में जैसे रिसर्च की जो थोड़ी बहुत फिर भी सिमुलेशन हैवी थी, बट आई रियली पर्सनली प्रेफर टू डू मोर पेन एंड पेपर कैलकुलेशन। सो जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की, सो आई मूव्ड इनटू अ फील्ड व्हिच वाज वेरी पेन एंड पेपर की, अभी भी सोचने पे और सिर्फ पेन एंड पेपर से कैलकुलेशन करने पे जोर दिया जाता है। वो अब मेरे को लगता है कि मैथ, प्योर मैथ और फिजिक्स की कुछ ये क्वांटम ग्रेविटी टाइप की कम्युनिटीज छोड़ के इट हैज लार्जली डिसअपियर्ड। इवन ज्यादातर फिजिक्स की कम्युनिटीज आर हेवीली रिलायंट ऑन कंप्यूटर। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जने को ना कंप्यूटर साइंस नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ करियर without knowing any coding in the modern times, but I have been able to find my way and do the things that I like to do, uh, and I've been very lucky in that way. So that is basically why, how I know what I want to do, because मेरे पास दोनों, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं चूज कर पाता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। How do I want know I want to do for the rest of my life? I don't think I know that very well. मैं अभी तक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं इस फील्ड में। कल को शायद आई डोंट नो, मतलब 20 साल बाद क्या मैं यही फील्ड में यही टाइप के सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ? आई डोंट नो द आंसर टू दैट वेरी ऑनेस्टली। हो सकता है कि मुझे कोई और फील्ड के कोई और सवाल फैसिनेट करें उस टाइम तक, तो शायद मैं अपना रिसर्च का डायरेक्शन चेंज कर लूँ। तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। बट हाँ, अभी तक तो मुझे
जो सवाल हैं इस फील्ड के, the idea of finding a theory that can combine quantum mechanics and gravity, I find that deeply fascinating, and I feel like that is sort of one of the most important questions, physics questions, जिसके बारे में हमको अभी तक शायद बहुत अच्छा कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कैसे वर्क करेगा। जो चित्रांग काम कर रहे हैं बेसिकली आइंस्टाइन और बोर की लड़ाई एसेंशियली के बाद से ही दो फिजिक्स के हिस्से हो गए थे, तो तब से ये चली जा रही है लड़ाई। क्योंकि ये हमारे एक लेक्चर में कम चित्रांग ने समझाया भी था कि क्वांटम जो होती है वो शायद बहुत छोटी चीजों के लिए लगती है और जनरल रिलेटिविटी बहुत भारी चीजों के लिए लगती है। तो इन दोनों को एक कैसे जगह पे लगाया जाए, यही मूल क्वेश्चन है जो हम जैसे कम समझदार लोग सिंपल भाषा में बोले तो इसी पे आपका फैसिनेशन है, राइट? That is right. सो ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं यही करता रहूंगा, मुझे यदि कोई और चीज इंटरेस्टिंग लगने लग गई तो आई कैन परस्यू दैट आल्सो, सो दैट्स व्हाट इट इज। वेरी नाइस। सो एक और हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर कुंदन। वेलकम मिस्टर कुंदन। थैंक यू सर वेलकम। तो आपको कुछ चित्रांग से क्वेश्चन पूछना था, आपका क्वेश्चन इनको बहुत पसंद आया, तो यस सर प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर वीडियो कॉल। हाँ हेलो पूछिए। भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो आप सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करते हैं जब आप ये फील करते हैं कि मेरे रिसर्च से या जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे कुछ आउटकम नहीं आ रहा अभी कुछ देर के लिए, तो आप बोर होते तो आप क्या करते हैं, मतलब उस समय और सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक काफी रिसर्चर्स, स्पेशली रिसर्च में ये क्वेश्चंस है, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कई बार कोई कैलकुलेशन होती है वो आप अटकी रहती है, फंसी रहती है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं मेरे साथ जो हुए हैं जो कि 30% ऑफ द वे थ्रू आप रियलाइज करते हो कि दिस इज वेरी हार्ड एंड आपको अबैंडन करना पड़ता है। सो थोड़ा तो आप ओवर टाइम इस चीज को रियलाइज कर लेते हो कि रिसर्च इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, कि ऐसा नहीं है Yes. कि मतलब किसी ने सवाल बनाया है जेई का कि आंसर आएगा ही आएगा। when you are actually Yes. trying to discover new knowledge, sometimes you will be unsuccessful. वो उस प्रोसेस की एक नेचुरल चीज है। दूसरी चीज इंटरेस्ट मेंटेन कर पाना, कभी कभी होता है नेचुरली कि इंटरेस्ट कम आ रहा होता है प्रॉब्लम्स में, तो एक तो ये होता है कि कई बार एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, सो यू कैन शिफ्ट फोकस फ्रॉम वन टू द अदर डिपेंडिंग ऑन थिंग्स। कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं होता है तो हो सकता है कि भाई एक दो दिन, स्पेशली वीकेंड है या कभी वीकडे में भी, कि उस दिन बिल्कुल भी रिसर्च के बारे में नहीं सोचा, कुछ और कर लिया, कोई किताब पढ़ ली। मुझे कुकिंग का शौक है तो खाना बना लिया। सो मतलब हाँ, इट इज there are days when I feel like कि आज I don't want to do a calculation, so that happens sometimes and I have figured out कि किस तरीके से उससे डील करना है। पर thank you for the question. भैया एक और इसी से रिलेटेड है कि मतलब जैसे कि आप कुकिंग करने में लग जाते हैं या फिर कोई बुक पढ़ने में लग जाते हैं तो आपका बहुत सारा समय उधर चला जाता है, तो फिर आप इसके रिलेटेड फिर आपको ये नहीं होता कि उतना समय अगर मैं उधर दे दिया होता तो फिर उसका सोल्यूशन निकल गया होता रेदर देन अगर इधर फोकस मैंने शिफ्ट ये किया। भी चीज थोड़े टाइम में रियलाइज होती है कि एक तो है ना कि यदि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो या पेंट अप हो तो आपकी एफिशिएंसी है ना 100% नहीं होने वाली है, आपकी एफिशिएंसी शायद 40-50% होगी। तो जो काम मैं 50% एफिशिएंसी में ना 15 घंटे में करूंगा, वो काम मैं 100% एफिशिएंसी में 7.5 घंटे में करके बाकी 7.5 घंटे कुछ और कर सकता हूँ। एक तो इस चीज की समझ आ जाती है। दूसरा ये कि मेरा ऐसा तो है नहीं ना कि यार मेरे पास अभी कोई लाइफ मतलब टाइम फिक्स्ड है। मेरा वर्स्ट केस क्या हुआ कि मेरा जो पेपर मार्च में पब्लिश होने वाला है वो शायद अप्रैल में पब्लिश हो जाएगा। तो थोड़ा तो चलता है, मतलब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में ही होती है। आप अनलेस आप कोई बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी या कुछ कर रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स कर पाए, और आज में जो चीजें नहीं कर पाए उसको कल में शायद ज्यादा एफिशिएंसी से कल में भी कर पाए। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स अलाउ फॉर दैट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्लेक्सिबिलिटी। होमवर्क नहीं सॉरी। हाँ नहीं, वंस इन अ व्हाइल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज का काम ही करके होमवर्क तो रोज करना है। जस्ट होमवर्क इज हार्ट सर्जरी फॉर मी।
है ना कुंदन, होमवर्क में रिलैक्स नहीं हो ना, बाकी थोड़ी चीजें चल रही। उसने भी कहा मुझे कि संडे को शायद होमवर्क नहीं देते होंगे सर आप, या हफ्ते में 3 दिन ही होता होगा ना आपका भी हाँ होमवर्क। हाँ तो ठीक है ना, यस सर। 3 दिन तो मिल गई ना छुट्टी। हाँ थैंक यू। बड़ा मजा आया कुंदन, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों ही। सो वेरी Yes, sir. नाइस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम अमन कुमार, राइट? तुम थोड़ा सा दो, सब जो चीजें चल रही होती है ट्विटर वगैरह पे तो नहीं रहते होंगे, तो पहले मैं तुम्हें बैकग्राउंड समझा तो रॉजर फेडरर पता है टेनिस का चैंपियन है, हाँ हाँ पता है। मतलब पूछना पड़ता है। तो ना उससे एक बच्चे ने एक बार पूछा कि फेडरर जी आप अभी ना मतलब थोड़े दिन और खेलिएगा, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो मैं आपको हराना चाहता हूँ मैच में। तो जब वो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचा तो रॉजर फेडरर उसको इनवाइट किया खेलने के लिए साथ में, तो उसका बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम वगैरह पे था। सो अमन कुमार का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, हाउ विल आई बी एबल टू डू रिसर्च विद यू? अब एक तो आपने प्रेफेस ऐसा किया है कि ना, पहले तो मैं इस प्रेफेस को खंडित करता हूँ सबसे पहले तो, फिर मैं सवाल का जवाब दे पाऊंगा। Now you learn from those journalist things, no? So now you are becoming careful. तो देखो एक दो चीजें हैं कि है ना, टू डू रिसर्च विद मी, एक तो आप मेरी कम्युनिटी में काम कर रहे हो और भी आपके पास कोई जेन्युइनली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है तो कोलैबोरेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू कैन कम टू me and discuss the question, and if I genuinely find it interesting, we can form a collaboration. उसके लिए आपको एक तो मेरी कम्युनिटी में होना पड़ेगा, जो कि क्वांटम ग्रेविटी या स्ट्रिंग थ्योरी की कम्युनिटी है। एक ऐसे सवाल पे काम करना पड़ेगा जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगे, और फिर वी विल हैव टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट। यदि ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो वी कैन कोलैबोरेट इन दैट सेंस। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है कि जैसे पीपल हु हैड आइडियलाइज्ड टू सम एक्सटेंट, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। अब जो लोग मेरी कम्युनिटी में, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी मिल गया है, पर जैसे एक इंडिया में बहुत ही फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है अशोक सेन, ही हैज गॉटन दिस फंडामेंटल प्राइज इन फिजिक्स आल्सो, जो बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है। So in the past year, I got to actually visit him in ICTS Bangalore, and I got to collaborate with him on 3 projects. So which was, जब मैं KVPY के कैंप में गया था, तो he was the invited speaker. So seeing somebody as an invited speaker, as a guest speaker, to actually collaborating with that person, मैंने मेरी लाइफ में 9 से या 10 साल में अचीव कर लिया, which to me I still feel like is a very big achievement. तो it is possible, again the things have to conspire in the right way कि you might feel the same way about other physicists जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but obviously अब हमारी दोनों की चीजें मैच नहीं करेंगी तो हम कैसे काम करते हैं, ये वाली बात है। So that is a very honest answer. It is not impossible. Only these 3 या 4 चीजों को मैच करना जरूरी है, but it is very hard because हाँ ये सब चीजों का मैच होना is not very trivial usually. आपके क्वांटम ग्रेविटी चूज करने में प्रोफेसर अशोक सेन से मुलाकात भी कोई रीजन था, या इट जस्ट सो हैपेंड कि जैसे जैसे आप पढ़ते गए आपको क्वांटम ग्रेविटी ज्यादा अट्रैक्ट की? मतलब सो अगेन वेरी नेगेटिव रीजनिंग इज व्हाट आई आल्सो वर्क ऑन। हम काफी लोग इसी पे वर्क करते हैं कि ना क्या नहीं करना है फिगर आउट कर लो, तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं बच्चे कुछ। कंप्यूटर यूज नहीं होता, दैट्स इट, सिंपल। हाँ सिंपल सीधा जवाब तो ये है। आई नो दिस, मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं। हाँ पर हाँ अशोक सेन के साथ काम करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग मोर स्ट्रिंग थ्योरेटिक थिंग्स। मैंने स्ट्रिंग थ्योरी उसके पहले तक कभी करनी थी, तो कोलैबोरेटिंग विद हिम वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग लाइक मोर स्ट्रिंग थ्योरी। जिनको नहीं पता हो प्रोफेसर अशोक सेन कौन है, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में क्या नोबेल प्राइज मिलना बंद हो गया करीब करीब, बिकॉज प्रूफ्स वगैरह में टाइम लगता है, इट इज बिकम टू मैथमेटिकल। सही है यहाँ तक? यहाँ तक सही है, बंद हो नहीं गया, मतलब बंद है। बंद है। ऐसा नहीं कि 10 साल में बंद हुआ है, ये बंद
बंद है। बट इवन So, आइंस्टाइन को भी मिला था तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, उसको कभी रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। 100 साल तो हो गए इस प्रेसिडेंट को। नहीं, पर फैनमैन को तो मिला था ना। पर वो पार्टिकल फिजिक्स में एक्चुअली उन्होंने वो चीजें अच्छा, that is डिस्कवर particle physics, right? See. So coming back, so there was this Russian billionaire जो पहले फिजिसिस्ट थे, बट प्रोबेबली ही स्विच्ड एंड बाद में कुछ ट्रेडिंग का एल्गो बनाए थे यूएस में जाके, एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन फेसबुक। तो उनके मतलब ही अर्न लॉट ऑफ मनी, सो ही एस्टेब्लिश्ड अ प्राइज फॉर, जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल प्राइज नाम है इन फिजिक्स, और अब और भी फील्ड्स में मिलता है। फंडामेंटल प्राइज इन फिजिक्स करके। और जब उन्होंने उसको देना शुरू किया तो इसका शायद प्राइज मनी भी उन्होंने नोबेल प्राइज से थोड़ा ज्यादा रखा ना। आई थिंक टोटल अमाउंट इज मे बी मोर देन या तो जो फर्स्ट रेसिपिएंट्स थे उनमें से एक हरीशचंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के इंडिया के प्रोफेसर अशोक सेन थे, और थ्रू चित्रांग ही मैंने उनके बारे में सबसे पहले सुना था जब ये केवीपीवाई के कैंप में होकर आए थे। तो उस समय वो काफी फेमस फिजिक्स की कम्युनिटी में हो गए थे, बिकॉज वो शायद फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये वाला मिला था, और वर्ल्ड वाइड भी कुछ ही नए लोग ही थे जिनको मिला था। तो उनसे चित्रांग का मिलना हुआ, और 10 साल बाद उनके साथ बैठ के इन्होंने 3 पेपर लिखे, 3 प्रोजेक्ट। अभी तक हाँ, 3 पेपर्स वी रिटन टुगेदर। And he's considered like India ke one of the premier theoretical physicists in your community. Premier theoretical physicist across the spectrum. Across the spectrum in India. So proud. So Aman Kumar, शुरू हो जा भाई। क्वांटम ग्रेविटी, an interesting problem. चले। सो थोड़ा सा हम देखें भाई फिजिक्स वाले लोग कैसे सोचते हैं। तो कभी कभी मैं मजाक में ऐसा बोल देता हूँ, समझ में मुझे बिल्कुल नहीं आता है, राइट, जस्ट डराने के लिए। कोई बच्चों को लगता है कि सर भारी वर्ड यूज नहीं करते, तो आई यूज दिस कि स्पेस टाइम फैब्रिक गेट्स कर्व्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास। ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का कंक्लूसिव या एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो आज हमारे पास इतने बड़े फिजिसिस्ट हैं, सो लेट्स ट्राई कि हम इसको समझ सकें क्या। और ये क्वेश्चन किसी पीकेएस ने पूछा, प्रोबेबली प्रकाश नाम है इनका। सो लेट्स सी। हाँ भाई चित्रांग, हाउ डज मास कर्व्स 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक, बिल्कुल ऐसे कि हम जैसे लोग थोड़ा बहुत समझ पाए। तो एक तो है ना, दिक्कत ये है कि थोड़ा तो आपको लैंग्वेज ने ज्यादा ट्रैप कर लिया कि वो फैब्रिक बोल के और स्पेस टाइम फैब्रिक बोल के आप अपने आप को ज्यादा बांध लेते हैं। तो एक तो फैब्रिक का आइडिया इज वेरी बैड आइडिया, उसको अपन छोड़ देते हैं एक तरफ। अपन एक सिंपल से केस की बात करते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। यदि आप कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज रखोगे तो वो क्या करेगा, वो है ना अपने आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देगा। तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फैब्रिक मानते हैं तो वो जो फैब्रिक है वो चार्ज के आसपास ज्यादा डेंस होगा, और चार्ज से दूर जाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल ऑफ करता है। वेरी सिमिलर फिनोमेना लाइंस की डेंसिटी, वेरी सिमिलर फिनोमेना हैपेंस इन ग्रेविटी आल्सो। इवन कूलम के लॉ पे भी आपको दिख रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है कि द स्पेस टाइम स्टेज इंटैक्ट एंड व्हाट इट चेंजेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ग्रेविटी जो है वो ऐसे फंक्शन नहीं करती है, उसमें इट इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द स्पेस टाइम, इट एक्चुअली एक्ट्स ऑन द स्पेस टाइम इटसेल्फ। कि वो स्पेस टाइम को बताती है कि यहाँ पे मैटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कर्व होना पड़ेगा। इन द सेम वे कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जो बता रहा था, उसी तरीके की चीज मास जो है वो स्पेस टाइम को बताती है। तो द basic idea is very similar to how electric fields and charges function. It is just a little bit strange क्योंकि हम जनरली स्पेस टाइम को बहुत ही स्टैटिक सी चीज मानते हैं। एटलीस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये नहीं मानते हैं कि भाई आप टाइम की स्पीड से मतलब टाइम के फ्लो करने की रेट चेंज कर सकते हो। तो इसलिए वो आइडिया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो सेम आइडिया हमको बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ, बट जीआर में आप इन द सेम वे आप स्पेस या टाइम के कर्वेचर को भी इक्वली इजीली चेंज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मास।
So आई होप सबके फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा जानना है तो खूब सारी मैथ्स करिए, खूब सारी फिजिक्स पढ़िए, और फाइनली बहुत ही अच्छा कुछ कर लिया तो चित्रांक के साथ रिसर्च करिए, राइट? इंटरेस्ट मैच हुआ एंड यू फाइंड एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एक और सवाल था, मैंने इसके गलत सलत आधे अधूरे आंसर कई बार दिए हुए, तो एक बार मैं किसी फिजिसिस्ट से मेरी भी पूछने की इच्छा थी। पूछने वाले का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बट अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, सो आई डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी? ओ, मिल गया, अनंत अग्रवाल। Anand Agarwal asked this, what is concept of energy? Is it purely an abstract idea or does it hold physical significance? तो आई थिंक यहाँ पे शायद 2 या 3 सवाल एक साथ पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि एनर्जी की परिभाषा क्या है, एक क्वेश्चन है कि एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है। अच्छा, एनर्जी को परिभाषित करना तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज आल्सो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, जिसके साथ आप वर्क कर सकते, मतलब दैट्स अ गुड इनफ डेफिनेशन इन सम सेंस। हाँ, अब उस चीज का कंजर्व्ड होने का क्या मतलब है? ऐसे तो मैं कोई भी चीज को कुछ भी डिफाइन कर दूंगा कि भाई कैपेसिटी टू डू थर्मल वर्क इज सम सॉर्ट ऑफ हीट और समथिंग मैं डिफाइन कर दूंगा, पर वो कंजर्व्ड नहीं है, तो दैट इज अ फंक्शनल डेफिनेशन जो काफी लोग यूज कर सकते हैं। व्हाई इज इट कंजर्व्ड? But इसके लिए again, because this is something that has sort of deep roots in the way we think about physics now, uh, conservation laws have a very deep connection with symmetries. So energy जो है वो एटलीस्ट एक ऑपरेटर है जिसका नाम हैमिल्टोनियन होता है। उस हैमिल्टोनियन का काम ही होता है कि वो आपको बताता है कि आपको टाइम में इवॉल्व कैसे होना है। यदि आपका यूनिवर्स t इक्वल 0 पे पता है, तो t इक्वल 0 से t इक्वल 1 पे यूनिवर्स कैसे जाएगा, वो हैमिल्टोनियन बताता है। उस हैमिल्टोनियन की वैल्यू को आप एनर्जी मानते हैं। In that sense, because it is generating your time translation, the time translation symmetry is deeply connected with the conservation of energy. so energy कोई मतलब जो आपकी इक्वेशंस आती हैं उसमें एक सॉर्ट ऑफ ऐसा कांस्टेंट है जो अलग अलग टाइम पे भी रखेंगे तो इट शुड गिव सेम रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट। एक ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स जो भी पढ़ेगा उस हैमिल्टोनियन से बहुत जल्दी उसकी मुलाकात हो जाएगी। उसका काम ही ये है कि वो आपको बताए कि आपको टाइम में ट्रांसलेट कैसे होना है। कि इसका ये मतलब है कि जैसे यदि मुझे किसी चीज को यहाँ से वहां खिसकाना है तो मैं उसको एक हाथ से खिसका सकता हूँ, पर उसको इन ऑपरेशनल सेंस कैसे किया जाए, उसके लिए मोमेंटम एक ऑपरेटर है जो वो काम करता है इन अ फिजिकल थियरी। वैसे ही हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है जो टाइम में ट्रांसलेशन जनरेट करता है। इस तरीके से उसको मतलब उस ऑपरेटर की वैल्यू को आप एनर्जी बोलते हो। So this is the more involved definition of energy that we will get from any either quantum mechanics or even more basic classical field theories. So, सही टेक्निकल जवाब तो इन दोनों सवालों के ये हैं। अब प्रोसेस करने के लिए शायद आपको वक्त ज्यादा लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आप किससे बात कर रहा हूँ। सो फिजिक्स भी पढ़ ली भाई लोग थोड़ा सा अपन लोगों ने, और एक दो क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड थे। ये आपको बहुत पसंद आया था क्वेश्चन पार्थ छिब्बर का, कि my question for you is how do you see the evolution of physics in next 3 decades? How would it be different from what has been in the past century? Also, are there any major research regarding quantum physics going on today that can solve some of the unexplained phenomena of our universe? If so, how will it affect our understanding of the universe? तो काफी सारे सवाल हैं, मेरे को जैसे जैसे जिसका जवाब जहां से पकड़ में आता है वहां से मैं देता जाऊंगा। तो रिसर्च कहाँ जा रही है, हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मेरे हिसाब से अभी एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में जो बिग ओपन क्वेश्चंस है, द बिग ओपन क्वेश्चन एज वी सेड इज कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी, और उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं
ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, जिससे उसका सक्सेसफुल रेजोल्यूशन कुछ हद तक हमको पता है, पर उसको शार्पन करना उस रेजोल्यूशन को। टाइम क्या है, या टाइम सो दिक्कत ये है कि जनरल रिलेटिविटी में टाइम एक तरीके की सिमेट्री हमने बात की, तो हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एक्चुअली इमर्ज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका हमारे पास अभी तक भी कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं है। when you think of this time translation being a symmetry of the geometry, the notion of time is a big question. What the black hole singularity is a big question. इन सब सवालों के जवाब हम शायद ढूंढ रहे हैं। मोर लार्जली पार्टिकल फिजिक्स में आई थिंक डार्क मैटर क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डार्क एनर्जी या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल है कि अब ये दिल गेट वेरी प्रोग्रेसिवली वेरी क्विकली वेरी टेक्निकल कि व्हाई इज देयर अ स्ट्रॉन्ग सीपी प्रॉब्लम, एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। इट शोज अप व्हेन यू टॉक अबाउट क्वार्क्स। वो पैरामीटर जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, उसकी वैल्यू अभी तक हम जितना भी टेस्ट कर पाए हैं, विच इज अप टू 12 डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन, वो 0 ही आई है। तो एक ऐसा फ्री पैरामीटर जो कुछ भी हो सकता था, मतलब एक एंगल है, वो एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 0 क्यों है इतनी प्रिसाइसली? इस सवाल का हमारे पास जवाब नहीं है जैसे। तो इस तरीके के सवाल है, मुझे लगता है जो 20-30 साल में हम शायद एज अ कम्युनिटी आंसर करने की शायद कोशिश करेंगे। कुछ सवाल जिनसे मुझे बहुत पसंद है। इमर्जेंस ऑफ टाइम मुझे लगता है एक बहुत ही इजी सवाल है, जो समझने वालों के लिए एटलीस्ट बेसिक लेवल पे भी, बट दैट आई फाइंड एज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। तो एक तो ये सवाल हो गया कि रिसर्च कहाँ जा रही है या मैं रिसर्च क्यों करता हूँ, क्योंकि देयर आर फैसिनेटिंग ओपन क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आंसर। और क्या How सवाल? it will affect your understanding of the universe? अब जैसे जो मैंने आपको बेसिक सवाल बताए, क्वांटम ग्रेविटी की खोज होना will significantly change the way we think about the physical world. टाइम क्या है इसको समझना will significantly change the way we think about universe. Dark energy या dark matter को समझना might tell us more about the sort of new particles that we have. इनका experimental realization किस scale पे हो पाएगा is very difficult to say, और काफी वक्त लगता है काफी चीजों को experimentally realize होने पे। तो हाँ, it would probably not change our lives very quickly. Some connections have been made between quantum gravity and quantum information. शायद quantum computing के domain में शायद हम कुछ ideas को देख पाए बहुत जल्दी. So that is how it's theoretical level पे it's going to maybe tell us a lot more about the universe. Practical level पे the theory experiment gap is 30-40 years, maybe 50-60 years. तो कोई डिस्कवरी होने के बाद शायद उतना टाइम भी लग सकता है कुछ भी होने में। वैसे तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था, ये प्रैक्टिकल यूज का तो इसने नहीं बोला, बट ये स्टिल यू हैव टोल्ड दैट, तो ये भी और क्लियर है कि भाई ऐसा मत सोचना इधर क्वांटम ग्रेविटी बनी और उधर स्टारशिप एंटरप्राइज बन गया और यू डू समथिंग एंड वॉक स्पीड पे आप कहीं से कहीं पहुंच गए, ऐसा तो भी नहीं होने वाला। राइट, एक और था ये मिस्टर सुजल का क्वेश्चन कि इनका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फिजिक्स स्पेशली इन क्वांटम मैकेनिक्स, पर इनको जॉब भी करना है, तो वो रुपये पैसे वाला सवाल इनका वो अपन ने काफी हद तक आंसर कर दिया है। व्हाट टू डू आफ्टर IIT फॉर रिसर्च, एक इनका पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये भी है। दूसरा ये भी, आई एम नॉट दैट मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथ्स बट आई एम वेरी मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स फिजिक्स, फॉर डूइंग रिसर्च शुड वी इंक्रीज मैथमेटिकल एबिलिटी? तो थर्ड वाला क्वेश्चन इज समथिंग जो मतलब सुजल का मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट इस पे आप आंसर कर दो, और बाकी तो हम कुछ पार्ट कर चुके हैं, कुछ आपकी हिसाब से आप बता। अगेन इट डिपेंड्स, यदि आपको थियोरेटिकल फिजिक्स करनी है, कोई भी प्रकार की थियोरेटिकल फिजिक्स, तो math is the framework in which we talk about things. We use a lot of complicated mathematical structures to talk about things. It is our language, it is the idea. Calculation करनी भी आनी चाहिए आपको, ideas को conceptual level पे math की समझ होना भी बहुत जरूरी है at the same time. So theoretical physics में it is very hard given the current when without knowing a lot of math. सिमुलेशन वगैरह काफी लोग कर लेते हैं, बेसिक मैथ से अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि
जीरो होगी तो आप कुछ ज, भी ज, कर एक पाएंगे। मिनट, ये बेसिक मैथ की अंडरस्टैंडिंग अगेन नीड्स टू बी क्वालिफाइड. मतलब एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट मैथ आपको करनी होनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए, एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स, जिसमें आपने कैलकुलस कर रखी हो, लिनियर अलजेब्रा कर रखा हो और डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रखा हो, इतनी तो आनी ही चाहिए। ज्यादातर जगहों के फिजिक्स करिकुलम में ये इंक्लूडेड होती है, और उसके अलावा फिजिक्स के कोर्सेज में जो मैथ होती है वो अलग से। मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और वो वाली जो कैलकुलस होती है, वो पूरी Multi- डाइवर्जेंस वाली सारी मैथ्स प्लस लिनियर अलजेब्रा पूरी प्लस पार्शियल डिफरेंशियल Plus- डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी। प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि जब आपने कैलकुलस कहा तो लोग ये 11th 12th वाली कैलकुलस समझ के रुक जाएंगे, वो जो वेक्टर कैलकुलस होती है वो छोड़ देंगे, तो इसलिए इट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड. इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, और उसके अलावा जो मैथ फिजिक्स लगती है डिपेंडिंग ऑन योर सिर्फ आनी फील्ड, चाहिए, यू शुड बी वेरी गुड इन दिस. यू शुड बी डिसेंटली गुड, अगेन मतलब डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं, शायद आपको हर चीज रोज में यूज नहीं होगी, बट एटलीस्ट आई एम वेरी श्योर कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को लगता है ज्यादातर लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ओके. कैलकुलस से मुझे लगता है कि ज्यादातर हमारे फिजिक्स का बहुत वास्ता है, उससे ज्यादा आपको नहीं आती हो तो आपका काम चल जाएगा, बट एटलीस्ट कैलकुलस में आपकी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हर इंटीग्रल करना आना चाहिए, बट एक कंसेप्चुअल लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और सम एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम भी होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एक्चुअली थैंक यू फॉर आस्किंग, बिकॉज मैं अभी चेक कर रहा था, ये वेदांत जाधव ने भी कुल घुमा के यही पूछा था, और अनंत अग्रवाल ने भी एसेंशियली यही पूछा था कि भाई कितनी मैथ्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, कितनी मैथ्स होगी तो हम लोग कर सकते हैं. Having said that, I'm also saying कि आपका यदि मतलब मैथ अच्छी नहीं है तो you will need some other skills to make up for it, like maybe you are doing a lot of simulation, कुछ हद तक आपको कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तरीके से मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल तो आपको चाहिए जिसको यूज करके आप नए रिजल्ट्स ड्राइव कर पाए। सिर्फ सोचने से फिजिक्स सिमुलेशन के के बारे लिए कोडिंग के लिए फिर से मैथ्स, फिर से लीनियर अलजेब्रा नहीं चाहिए होगी, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग. हाँ, ये अलग टाइप की मैथ चाहिए होती है। यदि आपको कैलकुलस नहीं पसंद है तो शायद आप वहां पे कोशिश कर सकते हैं, बट द बेसिक पॉइंट इज कि हाँ, कि कुछ हद तक टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको चाहिए। टेक्निकल कुछ भी काम करने की लैंग्वेज मैथ है। सिर्फ सोच के आप शायद फिलोसफी कर पाएंगे, फिलोसफी ऑफ फिजिक्स भी कोशिश कर पाएंगे करने की, बट आप प्योर फिजिक्स नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स उसमें फिर ज्यादातर जगह सिमुलेशन और डेटा एनालिसिस का कंपोनेंट होता है, तो मैथ नहीं आएगी तो भी स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। लार्ज डेटा से डील करने के लिए स्पेशली ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में डेटा सेट सब क्योंकि कंप्यूटर्स पे होते हैं, तो डेटा इज वेरी लार्ज, तो वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू नीड टू नो। दूसरा उसके अलावा मतलब हाथ का काम भी आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, कुछ लोग बिल्कुल भी डिजाइन नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो टेक्निकल स्किल। मतलब कहने की बात यह है कि आपको एक टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल में आपको एटलीस्ट एक टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है. एक और है, जस्ट ऑलमोस्ट सेम आंसर है. इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बड़ा अच्छा है कि what are the abilities I must have before I pursue physics as a career option? You answered that. Is it necessary that I must solve IIT questions before I pursue physics? Priyanshu Mangra. अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसने आईआईटी नहीं किया वो फिजिसिस्ट नहीं बन पाता है, पर ऐसा भी है कि ज्यादातर लोग जो फिजिसिस्ट हैं वो अपने अर्ली करियर में आईआईटी के फिजिक्स के सवाल कर पाते टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। सो इट इज अ वेरी गुड टेस्टिंग ग्राउंड फॉर योर एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व, और वो एबिलिटी आपको मैथ्स के भी यू आर वेरी गुड इन मैथ्स. अग्रीड। कुछ चीजें मुझे लगता है जैसे कोनिक सेक्शंस वगैरह टाइप की चीजें हैं वो शायद आप नहीं भी कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में आपको इतना हिंडर नहीं करेगा। एटलीस्ट मेरे फील्ड में कैलकुलस और ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला जो पोर्शन है उसमें तो आपका हाथ बहुत साफ होना चाहिए। तो हाँ, मतलब वो सवाल यदि आप नहीं ही कर पा रहे हो तो दैट इज इंडिकेटिव कि मे बी या तो आपकी प्रैक्टिस इनसफिशिएंट है या आपके सोचने के तरीके में कुछ गलती है, which can act as significant barriers to you becoming a physicist. तो
as I said, it's not a yes or no test, but it's a very strong indicator towards your ability to become a successful physicist. So, Mr. Mayank Swayam, we have answered your question. हर्ष चौहान, आपका भी सवाल करीब करीब यही था. How do I create good foundation in physics and maths beyond my 12th class level, so I actually become capable to do research in subject? I think we have answered this. थोड़ा बहुत आप अपने लेवल पे कर लो, बाकी लाइफ विल आल्सो टीच यू ना. आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट करने जहाँ जाओगे वहां पे भी आप फिजिक्स सीखोगे. ऐसा नहीं कि आपको सब अभी मतलब 2 साल में आपको रिसर्चर नहीं बनना है, ऐसा कोई आप डेडलाइन लेके नहीं चले हो. होपफुली तो यू विल हैव द टाइम टू लर्न द स्किल्स दैट यू नीड ओवर टाइम. तो हर्ष चौहान के क्वेश्चंस एक बार मैं पूरे पढ़ देता हूँ, बिकॉज ये कुछ पार्ट आंसर हो गया, कुछ छूट गया. सो लेट्स, कैन अ बीटेक स्टूडेंट परस्यूज रिसर्च इन फिजिक्स? इफ यस, हाउ? फिर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डू आई क्रिएट गुड फाउंडेशन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स beyond my enthusiastic level, so I actually become capable of research in subject? More specifically, where should I study physics and maths from while doing BTech engineering करते हुए? फिर his second question was, secondly, assume to pursue research a person should be a PhD student. When to start trying for that in timeline of my BTech? I will become a BTech student in a good college shortly. पढ़ाई अच्छी कर रहा है बच्चा, तभी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है. And I have deep interest in physics and have wished to study more physics till the level it can be studied in our age. If I can spend my life doing that, there would be nothing better. Thank you. This is Mr. Harsh Chauhan. तो एक तो आपका Just a minute, but before you start answering, Harsh Chauhan, you can keep on writing to me in emails, and if I find things are going well, I'll also help you out and pursue Chitrang to answer your queries in future also, because मुझे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा. Please. तो एक दो चीजें हैं अब जो रिलेटेड है कि एक तो ये कि अब आप कौन से लेवल पे हो कॉलेज में. काफी कॉलेजेस में देयर आर डिसिप्लिन दैट आर मोर फिजिक्स ओरिएंटेड एंड लेस फिजिक्स ओरिएंटेड. जैसे आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स चलता है जो बहुत ही फिजिक्स के करीब चलती है. So if you have that option to change your branch and you would really like to do physics, I would recommend कि as soon as possible you can change your branch. The other thing you can do is कि आप फिजिक्स में मास्टर्स के लिए पहले अप्लाई कर सकते हो, सीधा पीएचडी अप्लाई मत करना. Try to get masters from a good college. Some of what it will help you do is कि 1 या 2 साल में it can bring you up to speed and actually set you up for research. Another thing you can do is कि NIUS करके एक प्रोग्राम चलता है जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि HBCSC जो लोग ओलंपियाड्स कंडक्ट कराते हैं, दे रन अ अंडर ग्रेजुएट साइंस रिसर्च कैंप टाइप की चीज. तो यू कैन ऑल्सो राइट टू देम. यू कैन ऑल्सो राइट टू अदर प्रोफेसर्स इन इंडिया जो कि IISc में, TIFR में या अलग जगह काम कर रहे हैं आपके आसपास, एंड ट्राई टू कोलैबोरेट विद देम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल मैटर इज कि आपने उस टाइम तक कितनी फिजिक्स पढ़ी है और कितनी रिसर्च करी है. दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी, स्पेशली टू गेट इनटू गुड PhD प्रोग्राम. So and it has to be in a rigorous way. मतलब ये बोलना कि मैंने ना खुद से पढ़ लिया is not good enough for most people because it's very hard for them to cross check. क्या आप बोलोगे कि मैंने 4 किताबें पढ़ ली हैं? If there is no evidence, there is no evidence, unfortunately. So what you really need to do is you need to find collaborators or people to work on physics research with. Depending on your institution, you might have people at your institution who do research in physics. You might have people in your city that do research in physics. So that is the honest answer कि you'll have to find a inlet into the physics program and B you'll have to find research opportunities. तो ये दोनों चीजें आपको actively pursue करने की कोशिश करनी चाहिए. Again क्योंकि आप BTech में हैं तो थोड़ा आपको शायद एक normal जो BSc में start करता है उससे time ज्यादा लग सकता है. So don't get demotivated. If you're really interested, you will end up in physics. काफी लोग अलग अलग रास्तों से आ जाते हैं. काफी लोग जैसे कि मेरे को ऐसे भी लोग पता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते करते उस रास्ते से फिजिक्स में पहुंच गए हैं कि they started with electrical engineering, eventually they started working with like quantum optics. उस रास्ते से लोग फिजिक्स में पहुंच जाते हैं. So electrical engineering is also very good let in into physics. In some communities of physics, there are still people who come from a very applied background.
और आई थिंक दैट्स द मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग डिग्री, प्योर इंजीनियरिंग डिग्री जिससे मुझे लगता है कि लोग फिजिक्स में एंटर कर पाते हैं। या वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसका इंटरव्यू भी है चैनल पे, हर्षदीप सिंह। वो आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही फिजिसिस्ट बना, ब्राउन से शायद पीएचडी किया था, अभी यू वॉश में पोस्ट डॉक कर रहा है शायद, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एक चीज मुझे इससे भी ध्यान है कि अब काफी लोग जो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू भी फिजिक्स में घुस पाते हैं, तो इवन दैट इज एन इनलेट दैट हैज ओपनड अप फॉर पीपल नाउ। अनदर इनलेट दैट हैज ओपनड अप इज कि लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग मशीन लर्निंग फॉर फिजिक्स, कि पार्टिकल कोलाइडर्स के डेटा को मशीन लर्निंग से एनालाइज करना। सो काफी इंटरकनेक्शंस आ गए। यदि आप बायोलॉजिकल साइंसेज में हैं तो बायोफिजिक्स इज अ कॉन्टैक्ट डिसिप्लिन जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिक्स में कॉन्टैक्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ दिस कॉन्टैक्ट डिसिप्लिन जिसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं कि यू कैन फाइंड एन इनलेट इनटू दैट। यदि आप मैकेनिकल में तो आप फ्लूइड डायनामिक्स के थ्रू शायद नॉन लीनियर डायनामिक्स कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक योर कोर्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू फिजिक्स रिसर्च। So I would say कि आप अपने आप को in the short run उस direction में steer करें, and in the slightly longer run try to find research opportunities. So I think, Harsh Chauhan, we have answered your question. If you have any further query, feel free to write to me. I'll definitely further your query to Mr. Chitram. और मुझे कुछ पता हुआ या किसी और को भी मुझे लगा नहीं ये नहीं इसको भेज देता हूँ तो उसको भी भेज दो, राइट? So how do I know if I have to be endeavored to be sorry? हाँ, एक और मुझे भी जानना था ये, how is research, particularly research in physics, is actually done? मतलब करते क्या, मतलब क्या करते फिजिक्स की रिसर्च? So I will attack again this question in several directions ताकि मैं शायद सब कुछ कवर कर पाऊँ। तो एक तो है कि भाई मैं एक दिन में on average क्या क्या चीजें कर रहा होता हूँ। The first thing that people tend to do very often is आर्काइव करके एक वेबसाइट है जिसपे रोज पेपर्स पोस्ट होते हैं। तो आर्काइव खोल के आर्काइव देखना और उसपे कोई इंटरेस्टिंग पेपर अपीयर किया है तो वो पेपर पढ़ना। दैट टेल्स यू कि लोग कम्युनिटी में क्या सोच रहे हैं। इट गिव्स यू न्यू आइडियाज, न्यू प्रॉब्लम्स टू थिंक अबाउट। सेकंड रिलेटेड थिंग इज कि ज्यादातर अच्छी जगहों पे तो लोग कमेंट भी कर सकते हैं क्या? कमेंट करते हैं क्या? नहीं, दिस इज नॉट फॉर कमेंट। मतलब कमेंट ऐसे करते हैं कि आप पेपर लिख के कमेंट कर सकते हो। अच्छा, अपने पेपर में कमेंट कर सकते हो। इट्स नॉट सोशल मीडिया नहीं है। अच्छा, इट्स बेसिकली अ जर्नल ओनली, जैसे जर्नल्स होते थे उसका एक वर्जन है। अदर थिंग इज कि सेमिनार्स होते हैं, अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो लोग सेमिनार्स देखते हैं अगेन टू नो मोर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कम्युनिटी। सो दैट इज हेल्पिंग विद द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन कि आगे क्या काम करना है उसके लिए सोचने के लिए। ये एक दो तरीके हैं जहाँ से आपको आइडियाज आते हैं। थर्ड थिंग टू डू आइडिया जनरेशन इज यू टॉक टू लॉट ऑफ फिजिसिस्ट्स यूजुअली। कुछ लोग आपके डिपार्टमेंट में हैं, कुछ लोग आपके लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर्स हैं, तो आप महीने 2 महीने में उनसे बात कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, डू यू हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू बीन वर्किंग ऑन। The other aspect of actually doing the research once you have a problem is actually doing the computations. Depending on आप किससे collaborate कर रहे हो, you might meet with your collaborators very frequently to discuss कि यार आज मैंने इतनी calculation की, I am stuck here, yeah, I happen to do this, yeah. तो कई बार older collaborators know a lot more of the material, so they can tell me कि हाँ भाई 15 साल पहले वो पेपर था उसमें शायद कुछ तुमको काम का मिल जाए। So the actual doing of research is part of it is finding the ideas and the second part of it is doing the math and doing the calculations. ये मैं मेरी तरफ से बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी community में ऐसे होती है। So a lot of time is just spent like doing a calculation, taking it through, making sure answers make sense, doing some numerical checks, using some simple software tools to help you out, इस तरीके की चीजें। So that is how research is actually done in my field. मतलब वो जो पिक्चर बनी हुई है दिमाग में कि अकेले बैठ के ऐसे सोच रहे हैं, फिर कोई आइडिया आया, फिर कुछ सॉल्व कर डाला, अभी भी होता है क्या ऐसे? मतलब या मोस्टली थोड़ा थोड़ा तो होता है, छोटी कैलकुलेशन में तो होता है कि हाँ सोच रहे हो कि भाई इसको कैसे हैंडल करें, फिर थोड़ा टाइम में लगता है कि ऐसे कर लेते हैं, नहीं वैसे नहीं, कर मतलब ऐसे बैठे बैठे सोच के मतलब सब काम, फिर पेन चलाया, फिर कुछ आ गया आंसर। डिपेंड करता है, कई बार क्यूट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, पर मेरे को थोड़ा रेयर है। आई थिंक मैथ वालों को क्यूट प्रूफ ज्यादा जल्दी मिलते हैं, उनका थोड़ा
It is more common in pure math than in physics. हमारे केस में it is mostly, at least मेरे केस में ज्यादातर projects by my choice of problems also very calculational. मुझे calculation करना पसंद है. So generally we know कि how, in a very abstract sense, we sometimes you have a very good idea of how to get the answer, but a lot of it is actually doing the calculation, making sure कि the math exactly works out correctly. Because a lot of my projects have been in the spirit of exactly matching things across dualities. So in that case, एक factor of 2 या एक factor of I भी बहुत important है, because you're making a very exact claim there. So then just arguments are not sufficient a lot of times. But collaboration is, जैसे मैं शुरू से सुना, it is mostly about collaboration. It is not like a singular journey कि मैं खुद निकल गया, खुद ही सोचा, खुद ही तोड़ लिया. Doesn't work like that most of the time. At least मुझे collaborate करना पसंद है. कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं, उनमें से कुछ लोग बिल्कुल ही अपने काम कर रहे होते हैं और क्रैकपॉट हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीमली फेमस भी हो जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड मीडियम पाथ कि मुझे पता है कि एटलीस्ट जब तक कोलैबोरेटर्स हैं तो आई नो कि आई एम नॉट, एटलीस्ट देयर आर अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन माय प्रॉब्लम. आपको शायद एक चीज ये भी ध्यान रखना, द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कैन कीप वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, बट इफ देयर इज नो इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी ऑन द प्रॉब्लम, तो फिर कोई पढ़ेगा नहीं आपका पेपर, फिर क्या मतलब है ना. Got it. तो भैया बता दिया है मिस्टर प्रणव मखदूम हाउ दिस इज डन. एक और क्वेश्चन था ये मिस्टर अतुल कुमार का. टेल मी अबाउट योर अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक ऑफ हाई लेवल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स. आई मीन हाउ यू कनेक्ट स्टेप बाय स्टेप पॉइंट, that is ABCD to word, word to sentence, sentence to paragraph, to find out conclusion of any physics pending problem or ongoing. This is Mr. Atul Kumar. So at least मेरे केस में I personally find math easier than words, क्योंकि एक तो मैथ से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, सही है तो सही है, यदि कोई मिस्टेक है तो आपको मैथ इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन दैट सेंस. So at least for me personally, the mathematical understanding or proof or calculation is the central focus of understanding anything. कुछ टाइम बाद आपको obviously intuition develop हो जाता है कि क्या चीज किस तरीके से वर्क करी. So I don't have to check through every step. If I'm especially reading a paper, ये समझना कि कैसे हुई है is more important than exactly understanding every factor of two, unless I actually want to do the calculation, in which case वो भी मुझे समझना पड़ेगा. बट मेरे दिमाग में एटलीस्ट मैथ को समझना बहुत आसान है, और मैं मैथ के थ्रू ही कोई भी चीज को पहले समझने की कोशिश करता हूँ. So this is how you feed connect, मतलब कनेक्ट कैसे करते हो कि ये समझ में आ गया, अब नेक्स्ट इससे ये पिक्चर बन रही है, अब इन दोनों पिक्चर से ये ओवरऑल व्यू आ रहा है चीजों का. तो जैसे मैंने कहा कि मतलब मेरे लिए मैथ इज मोर इम्पोर्टेंट. सो इफ देयर इज अ लॉन्ग टेक्निकल कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन में इट इज वेरी इजी टू फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप, राइट. या पिक्चर का इमर्जेंस मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी है मेरे दिमाग में. ओके. वंस आई अंडरस्टैंड द मैथ, आई कैन अटैच वर्ड्स टू इट कि क्या हो रहा है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग इज प्राइमरीली लाइक फाइंडिंग द मैथमेटिकल प्रूफ और फाइंडिंग द मैथमेटिकल एसेंस. And math, by the way of how modern math is done, is very rigorous and very complete and very sequential to begin with. कि ज्यादातर जगहों पे proofs ऐसे नहीं होते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि सीक्वेंस नहीं हो चीजों का. आइडियाज में, थॉट्स में ज्यादा दिक्कत आती है, प्रूफ्स में दिक्कत ही कम आती है. इट इज वेरी लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल. We covered two topics in this particular podcast, जहाँ पे चित्रांग से अपन ने बात करी. कुछ और क्वेश्चन चित्रांग अभी रह गए हैं जो बच्चों ने पूछे थे अबाउट यूनिवर्सिटीज एंड सम अदर वेरियस क्वेरीज. क्वांटम मैकेनिक्स जो आपका बहुत फेवरेट है, तो इसके लिए हमें आपको एक बार फिर से दोबारा बुलाना पड़ेगा, और आई होप आप टाइम दे पाएंगे. बिल्कुल. एंड आई होप कि जिन्होंने सवाल पूछे, एक तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी द क्वेश्चंस, और दूसरा होपफुली मेरे जवाब आपको समझ में आए हो. नहीं, जवाब तो समझ में आया. यू आर अ रियली गुड टीचर. मैंने पढ़ा है ना आपसे क्वांटम मैकेनिक्स, आपने मुझे पढ़ाया था. राइट. पर आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सर, क्या पता बाकी लोगों को कितने समझ में.
वैसे भी अपन बात ऐसे ही करते हैं कि हम दोनों को ही बात करनी है, बाकी तो ऐसे ही है। ऑलराइट, सो बाकी लोगों को आ गया होगा समझ में, विल अज्यूम दैट। नहीं आया तो यू कैन राइट ऑन कमेंट्स, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे सवाल थे, खासकर फिजिक्स से रिलेटेड सवाल बहुत अच्छे थे। सो वो बहुत मजेदार थे, रिसर्च वाले आइडियाज बड़े अच्छे थे, जेई वाले क्वेश्चंस के आंसर भी हमने दे दिए हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी थी इसलिए दे दिए। बाकी थोड़ा सा हम दोनों ही उससे जी चुराते हैं। ऑलराइट, मैं तो क्योंकि उधर काम ही ये करता हूँ, और चित्रांग काफी हद तक भूल भी जाते हैं इस वजह से। लेकिन एक फायदा ये हुआ कि चित्रांग को जो 3 गलत चीजों के लिए कोट किया जाता था, वो आज बिल्कुल क्लियर हो गया। गाड़ी में नहीं पढ़ते थे, और 16 घंटे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, और सीएस गलती से ले ली थी बिकॉज जो जर्नलिस्ट था उसने बोला था, कोई एक आध था जिसने आपको शायद इलेक्ट्रिकल या फिजिक्स लेने को बोला था। मतलब ऐसे मैं जर्नलिस्ट मैं 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 हूँ ना, इंसान, हाँ हाँ, इंसान तो बहुत थे, मुझे लगा जर्नलिस्ट ने कहाँ पूछ नहीं लिया। जर्नलिस्ट नहीं, हाँ। मैं बोला था मत ले। हाँ, नहीं लोग तो थे, लोग तो थे। वही एक्चुअली मुझे आई थिंक मुझे इस चीज को टाइम ही नहीं मिला कि मैं सवाल को जितना ड्यू डिलिजेंस है उस टाइम पे मैंने दिया नहीं, मुझे लग रहा है। Yes, yes. So thanks again. So we'll meet soon next time. Bye bye everyone. Thank you again. थैंक यू।